Hello students, I hope you all are doing fine. So in today's video, we will move forward with part 2 of culture media. So people, I hope you all can recall what we have studied in the last class. Basically, we have defined what is culture media, what are the types of culture media, why a culture media is important. We got a brief overview of special medias. We have also learned about enriched media and enrichment media and the differences between them. So I hope the last lecture was crystal clear in your mind. Now let me quickly summarize what was like culture media and what else did I taught in the last class. So culture media is nothing but a growth media or medium in which a specific kind or species of bacteria is grown. Okay, out there we study a colony of bacteria because morphology is not enough to understand the pathogenicity of a bacteria. We study about the different characters of the bacteria. We have also discussed about some types of like many species which are grown on particular kind of agar. So in today's video, we will cover in detail solid media, semi-solid media, liquid media, anaerobic media, and simple or basal media. On the basis of physical state, मतलब physical nature के basis में हम categorize कर रहे हैं media को 3 types में, ठीक है? First आता है आपका solid media. Now this solid media by the name you can understand, it means solid है media आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? We can see a visible growth, ठीक है? बैक्टीरिया का growth जो होता है हम उसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं. Pure growth के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. Basically it is used for the study of colony morphology. Bacterial colony का जो morphology है मतलब उसका shape, size, color, okay, the things that we can see, the phenotypes, okay, that is basically the morphology of a bacteria can be studied and the other features also. तो इसमें जैसे streaking methods हो गया आपका न्यूट्रिएंट आगार में, ठीक है? बेसिकली न्यूट्रिएंट आगार यूज करते हैं बाकी लैब्स में, कॉमन लैब्स में, बट अगेन स्पेसिफिक मीडियाज आर आल्सो यूज लाइक ब्लड आगर, चॉकलेट आगर, मैकॉन्के आगर. ये सब आपके सॉलिड मीडिया के कुछ एग्जांपल्स हैं. आगे देखो सेमी सॉलिड मीडिया. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेमी सॉलिड मीडिया? इट इज अ मीडिया दैट इज समवेयर इन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है? ये नाइदर आपका टोटली सॉलिड मीडिया है, ये नाइदर आपका टोटली लिक्विड मीडिया है, ठीक है? ये दोनों के बीच में आती है और इसका टिपिकल स्टडी हम लोग टिपिकली वी आर यूजिंग दिस फॉर व्हाट? फॉर द स्टडी ऑफ बैक्टीरियल मोर्टेलिटी, मतलब बैक्टीरिया का लोकोमोशन, उसका मूवमेंट को स्टडी करने के लिए हम ऐसे मीडिया को यूज करते हैं. Now guys see, okay, it is used for cultivating of anaerobic bacteria and microaerophilic organisms. इसका मतलब जो बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, उसको हम anaerobic बोलते हैं, और जिसको माइक्रोएरोफिलिक बोल रहे हैं इसको मिनिमल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. Next comes your liquid media. Liquid media by the name we can understand liquid होता है, ठीक है? Now see, it doesn't permit isolation of different types of bacteria from a mixed population. इन लिक्विड मीडिया आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलती है. हम वहाँ से एक अलग बैक्टीरिया करके उसको आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है? हमें अगर कोई स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया चाहिए उसको अलग करना, या एक बैक्टीरियम चाहिए उसको अलग करना, इट वोंट बी पॉसिबल. ओके, नाउ सी, इट इज़ यूज्ड फॉर व्हाट? It is used for testing of pure culture of bacteria. Okay, next it is used for making bulk culture to prepare antigen or vaccines, ठीक है? Generally for preparing vaccines this kind of media is used. Now it is also used for obtaining growth of microorganisms from blood or water when large volume are to be tested, ठीक है? अब अगर आप suppose we are taking a specimen from a person blood or like from patient's blood, ठीक है? उसको हम लोग अगर हम उसको स्टडी करें कि उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो पैथोजेनिक है, ठीक है? अगर हम लोग
पॉन्ड वाटर से हम लोग अगर पॉन्ड वाटर लेके आए, वहाँ पे कई तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, तो उसको भी स्टडी करने के लिए जो बल्क या लार्ज वॉल्यूम में अगर आपको स्टडी करना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, दैट टाइम वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ मीडिया. आई होप दिस एंटायर स्लाइड इज क्लियर टू यू. Now by the word anaerobic, ठीक है, anaerobic basically all of you know it means that organisms which do not grow in the presence of oxygen, ठीक है. Now see this kind of media, what is happening, how they are favoring the growth of anaerobic organism. They are containing a reducing agent. Reducing agent केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है आर दोज एजेंट्स जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो शेड आउट होती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया. दिस काइंड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट दे आर वेयर दे आर प्रेजेंट ओके इन द मीडिया. नाउ what do? They absorb all the oxygen and they create an anaerobic condition favoring growth of anaerobes. फर्दर देखो इन्होंने एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स को है ना, दे हैव अगेन कैटेगराइज, ठीक है. कोकाई में ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. ग्राम पॉजिटिव में एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई. ग्राम नेगेटिव में वेलिनेला. बैसिलस स्पीशीज में अगेन नॉन स्पोरिंग, द वंस दैट डू नॉट स्पोर, ओके, स्पोर फॉर्मिंग जो नहीं होते हैं, उसमें भी ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव में. ग्राम पॉजिटिव में आ रहा है आपका लैक्टोबैसिलस एक्टिनोमाइसीटीज, ओके. नेक्स्ट इज योर यूबैक्टीरियम. ग्राम नेगेटिव में आता है बैक्टीरियोइड, लेप्टोट्राइकिया. नेक्स्ट इज योर स्पोरिंग में क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज, ओके. दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ऑफ द मीडिया, ठीक है. सबसे पॉपुलर मीडिया जो एनारोबिक में है दैट इज योर रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ. इसका कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है. कॉम्पोजिशन मीन्स लाइक इस ब्रॉथ में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स डालते हैं. कुक्ड मीट फ्रॉम फ्रेश ऑक्सहर्ट टिश्यू, ओके. ऑक्सहर्ट के टिश्यू को इधर डाला जाता है. नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, देन मीट इन्फ्यूजन ब्रॉथ, ओके. एंड द टॉप इज कवर्ड विथ योर लिक्विड पैराफिन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर. इस चीज में क्या हो रहा है, जो चॉप्ड मीट है, ठीक है, जो मीट का कंटेंट है दैट इज एक्टिंग एज योर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स which is also acting as your reducing agent and they are absorbing the oxygen from the environment. Other reducing agents में जो है glutathione आता है and cysteine आती है. Now this entire composition what we are doing, we are autoclaving it at 121 degrees Celsius, 15 IVs pressure per square inch में for 20 minutes, okay. And after incubation water is made alkaline to neutralize lactic acid of meat and desaturate fatty acids in meat. Now you can see the end uses, like it is used for the preservation of stock culture. एनारोबिक कल्चर के लिए भी यूज करते हैं और कोई भी चीज को प्रिजर्व करने के लिए. बेसिकली जो लिक्विड पैराफिन है ना, ये बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में भी यूज होते थे, अभी भी यूज होते हैं. इनफैक्ट मेनी मेडिसिन में भी मेडिसिनल पैराफिन भी बोलते हैं इसको. बेसिकली इसका काम होता है प्रिजर्वेशन को रखना, ठीक है. Now see simple media, okay, which is also known as basal media. Basal media में जब हम लोग components को add करते हैं, ठीक है, जैसे कि पेप्टॉन वाटर, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, सोडियम क्लोराइड, तब एक सिंपल मीडिया बनता है. अभी सिंपल मीडिया के एग्जांपल्स में देखो न्यूट्रिएंट आगार, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, ठीक है, इनफैक्ट पेप्टॉन वाटर खुद में ही. These are the very easy medias that which is helping you for the growth of non-fastidious bacterium. नॉन फास्टिडियस का मतलब है जैसे बैक्टीरियम्स को उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कुछ बैक्टीरियाज है जिसको हाईली स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है अपने ग्रोथ के लिए, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है जो कि एक मिनिमल कंडीशन में, ठीक है, ग्रो कर सकते हैं, तो उसको हम लोग नॉन फास्टिडियस बोलते हैं. देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन इन दिस स्लाइड, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now see what is enriched media. Enriched media is nothing but a solid media, okay. It is a special kind of basal media.
जिसको बनाते कैसे हैं, जहाँ पर हम लोग हाईली न्यूट्रियस सब्सटेंसेस को ऐड करके, जैसे ब्लड हो गया, सीरम हो गया, एग हो गया, आपका मिल्क, glucose. Okay, we are adding all these components which is highly nutritious to prepare enriched media. Now what do? They allow the growth of fastidious organisms. जिस organisms को specific nutrient या nutrient additives की ज़रूरत है उसको ग्रोथ के लिए, ठीक है, वैसे मीडियाज को हम लोग बोलते हैं, वैसे बैक्टीरियम्स को या हम लोग बोलते हैं फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अभी एनरिच मीडिया का एग्जांपल आप देख सकते हैं, विजिबली ब्लड आगर है, चॉकलेट आगर है, एंड द लोवेफ्लर्स सीरम। नाउ व्हाट इज ब्लड आगर? ब्लड आगर, एज द नेम सजेस्ट, सी ब्लड आगर कंटेन्स जनरल न्यूट्रिएंट्स। जनरल न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है आपका? प्रोटीन सोर्स, ठीक है। नाउ सोयाबीन प्रोटीन डाइजेस्ट, सोडियम क्लोराइड, आगार, ठीक है, एंड देयर इज 5% शिप ब्लड। ये ब्लड जो है इट कैन बी टेकन फ्रॉम शिप और इट कैन बी टेकन फ्रॉम रैबिट, हॉर्स एंड ऑक्स, ठीक है। बट ह्यूमन ब्लड को हम लोग क्यों नहीं यूज करते? वाई आर वी अवॉइडिंग ह्यूमन ब्लड? बिकॉज इट इज कंटेनिंग योर इनहिबिटरी सब्सटेंसेस सच एज एंटीबॉडीज, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग उस बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे तो automatically the antibodies that are present in the human blood, okay, they will get activated, okay, since the bacteria is antigen to them. समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए हम ह्यूमन ब्लड को यूज नहीं करते क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होने का चांसेस होता है उसमें। दूसरा देखो, blood agar, okay, it is useful for cultivating fastidious organism and also for determining the hemolytic capabilities of an organism. hemolytic का मतलब है आरबीसी को ब्रेक डाउन का जो कैपेबिलिटी है, आरबीसी को हम लोग सेल लाइसिस करते हैं, ठीक है, उसका कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वो भी हम देख सकते हैं। दिस इज अ प्लस पॉइंट ऑफ ब्लड आगर। अभी देखो ब्लड आगर का प्रिपरेशन कैसे हो रहा है। ओके, हाउ डू वी प्रिपेयर ब्लड आगर? First, we are suspending 28 gram of nutrient agar powder in 1 liter of distilled water. That is the first step. Next, हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं, मतलब हम लोग ले रहे हैं न्यूट्रिएंट आगर के पाउडर को, फिर उसको 1 लीटर के डिस्टिल्ड वाटर में हम लोग उसको डाल रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, now next we are heating the mixture while stirring to fully dissolve all the components. आपने अपने लैब्स में देखा होगा जब भी हम लोग ऐसे कल्चर करते हैं या हम लोग को इंक्यूबेशन ऑटोक्लेविंग के पहले, आई मीन टू से ऑटोक्लेविंग के पहले क्या करते हैं हम लोग, ऐसे अगर हमें कोई ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना होता है तो हम लोग उसके जो न्यूट्रिएंट आगर को है, वी आर टेकिंग द सर्टेन अमाउंट ऑफ आगर एज स्पेसिफाइड, ओके, देन वी आर एडिंग इट टू द डिस्टिल्ड वाटर। फिर उस डिस्टिल्ड वाटर में वी कंटिन्यूअली स्टीयर इट, ठीक है, हम लोग उसको स्पैचुला के हेल्प से या कुछ हेल्प से हम लोग उसको स्टीयर करते रहते हैं जिससे कि जो कंपोनेंट्स है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। नेक्स्ट व्हाट वी डू, वी आर ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग मतलब जो हम लोग ऑटोक्लेव में उसको ऑटोक्लेविंग करते हैं, वी आर हीटिंग इट, ओके, at 121 degrees Celsius for 15 minutes, okay. Next you see, once the nutrient agar, okay, has been autoclaved, autoclaving is done, we are allowing it to cool, okay. ऑटोक्लेविंग के बाद हम लोग जब उसको बाहर निकलते हैं हम उसको कूलिंग करते हैं थोड़े टाइम के लिए, बट द कूलिंग डजंट मीन्स वी वांटेड टू सॉलिडिफाई, उसको हम लोग सॉलिड बनाने के लिए नहीं कूलिंग करते हैं, बट वी आर ट्राइंग टू कूल इट डाउन, ठीक है। Now see, when the molten nutrient agar at 45 to 50 degrees Celsius, okay, then we are adding, जब उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है तब हम लोग क्या करते हैं, हम उसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, 5 to 10% ऑफ स्टेराइल डिफैब्रिनेटेड शिप ब्लड, जो 5% ब्लड था हम उसे ऐड करते हैं, ओके, एंड दैट हैज़ बीन वार्म्ड, ओके, टू रूम टेम्परेचर एंड वी मिक्स इट जेंटली, बट वेल हम लोग उसको हल्के हाथ से जो है मिक्सअप करते हैं। नाउ वी इन दिस टाइम वी नीड टू कीप इन माइंड दैट हमें एयर बबल्स की जो फॉर्मेशन है उसको नहीं होना चाहिए, ओके, वी नीड टू अवॉइड एयर बबल फॉर्मेशन एंड देन वी डिस्पेंस इनटू स्टेराइल प्लेट वाइल लिक्विड, ठीक है, जो वो जब लिक्विड स्टेट में होती है उसको तभी हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग पेट्री डिशेस लेते हैं वहाँ पे हम लोग उसको डालते रहते हैं, ठीक है।
So you already know that blood agar is an enriched media in which the fastidious organisms, they can grow. Okay, it is facilitating the growth of fastidious organisms. Now next is that it also serves as your differential or indicator media. इसका मतलब है कि ब्लड आगर में जो हेमोलाइसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है, मतलब हम लोग आरबीसी या एरिथ्रोसाइट जिसको कहते हैं, उसका जो हेमोलाइसिस होता है उसको भी हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसीलिए इसको इंडिकेटर मीडिया या डिफरेंशियल मीडिया भी हम इसे कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ हेमोलाइसिस जो है ना, वो हेमोलाइसिस के जो ऑर्गेनिजम्स है या तो एंजाइम्स बोलते हैं, हेमोलाइसिन, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स है वही सिर्फ इस चीज़ को कर सकते हैं. ठीक है, देखो अभी ऑन द बेसिस ऑफ हेमोलाइसिस जो है अल्फा बीटा एंड गामा में ये चीज़ कैटेगराइज होती है. अभी गामा जो है देयर इज नो हेमोलाइसिस. ओके, इट इज क्वाइट मिसलीडिंग टू हैव अ कैटेगरी. वहाँ पे बस हम लोग बैक्टीरिया के जो स्ट्रिकिंग्स हैं वही देख सकते हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. नेक्स्ट इन द बीटा वन यू कैन सी इट इज़ विजिबल. ओके, जब हम उसको लाइट अप के सामने माइक्रोस्कोप में या तो हम लोग लाइट के सामने लेके जाते हैं, देन यू कैन सी अ ब्राइट ग्लोइंग थिंग, क्योंकि इसमें कंप्लीट हेमोलाइसिस होती है एंड यू कैन सी द क्लियर कलर. ओके, नेक्स्ट ऑन द अल्फा वन इट इज़ अ ग्रीन कलर. ओके, पार्शियली हेमोलाइसिस होता है आरबीसीज का. इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अलॉन्ग विद द ग्रोथ, ओके, दे आर ऑल्सो हेमोलाइटिंग, हेमोलाइसिस कर रहे हैं वो ब्लड सेल्स का या आरबीसीज का जहाँ पे उसका ग्रोथ हो रहा है. Let us see in detail what is alpha hemolysis. Alpha hemolysis is defined by a greenish discoloration around the colony as a result of partial lysis of RBC. That point clear? Okay. Next is during hemolysis, hydrogen peroxide is produced by the bacteria that causes hemoglobin to oxidize, which is present in the RBCs of the medium, and it is converting into what? Green methanoglobin. Some of the examples are your Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridien. Okay. So guys, see, species like Streptococcus pyrogens and Staphylococcus aureus, you can see at the images that is displayed out here. इनमें क्या हो रहा है, जो बीटा हेमोलाइसिस, ओके, मतलब ये कम्प्लीटली जो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन है, ठीक है, वो पार्ट को ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर रहा है, उस हीम को लाइसिस कर रहा है. ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन होने से ये जो पार्ट्स है वो आपका पूरा क्लियर हो जाता है. सो एज यू कैन रीड, क्लियर जोन ऑफ हेमोलाइसिस अराउंड द कॉलोनीज. Next is your gamma hemolysis. Now this gamma hemolysis, which is defined by no breakdown of RBCs, or you can say that there is lack of hemolysis. मतलब यहाँ पे कोई hemolysis जो है वो नहीं हो रहा है. ठीक है, bacterial colonies of the bacteria, they are not breaking down the RBC or your red blood cells. Okay, now see, Enterococcus faecium, Enterococcus faeculus, इनका blood agar में देखो हमें इधर सिर्फ जो है स्ट्रीकिंग्स जो है वो दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी जो है हेमोलाइसिस नहीं दिख रही है. नाउ सी नेक्स्ट, ब्लड अगर कैन बी मेड सिलेक्टिव फॉर सर्टेन पैथोजेंस बाय एडिशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, डाइज, केमिकल्स. ओके, सो जब जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारे पैथोजन हम लोग जैसे बैक्टीरिया को डिटेक्ट करेंगे, वी कैन यूज एंटीबायोटिक्स, डाइज एंड केमिकल्स इन एडिशन to get the desired result. Okay, for example, crystal violet blood agar. ठीक है, now there is next neomycin blood agar, kanamycin blood agar. ये सब चीजें जो है यूज होती है. So guys, in a very simple language, if I try to explain you, then chocolate agar is nothing but the blood agar. Okay, the blood agar that was containing your 5 to 10% of the sheep blood, which is further molten to nutrient agar at 70 degrees Celsius. Okay, so that what is happening, the RBCs will be lysing. Okay, the RBCs will get lysed and the contents of the RBCs will get released. Okay, RBC में जो content है वो release हो जाएगा बाहर
This will lead to the change in the color of the media from red to brown. कलर चेंजिंग हो रहा है आपका रेड से ब्राउन कलर में, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आरबीसी का जो कंटेंट है, आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल है। सेल का कंटेंट क्या हो रहा है? ज़्यादा हीट होने की वजह से उसका जो कंटेंट है वो बाहर आ जाता है, जिसके वजह से जो है हम इसे चॉकलेट आगर का नाम देते हैं, ठीक है। और चॉकलेट आगर जो है वो ब्लड आगर से इट इज़ मोर न्यूट्रिशियस, ओके। It is even supporting certain highly fastidious bacteria like Haemophilus influenza, okay. And next it is used for the cultivation of Haemophilus meningococci gonococci species. Fine. So this was all about your chocolate agar. Now see, next is your Loeffler serum. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? It is containing horse serum. It is used for the cultivation of Corynebacterium diphtheria. So whenever Corynebacterium diphtheria का या Corynebacterium diphtheriae to be more specific, अगर इस बैक्टीरियम के कल्चर के बारे में आपको पूछा जाता है, then definitely the correct match will be your Loeffler serum. ठीक है, आप देख सकते हैं इसका इमेज, ठीक है। So these are kind of what you say special media, okay, which is made definitely for growth of fastidious and a very fastidious kind, highly fastidious kind of bacteria, okay. Now guys, let's see what is blood culture media. See, they are also enriched media, and this one is used for isolation of microorganisms from blood. Fine. Now they are again of two types. First is your monophasic, other one is your बाईफेजिक। मतलब जो ब्लड कल्चर मीडिया है वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ब्लड में होते हैं उसको आइसोलेट करने के लिए, उसको बाहर निकाल के उसकी कल्चर करने के लिए, सपोज किसी पेशेंट के बॉडी में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हमें उसको आइसोलेट करके स्टडी करना है, देन वी विल स्टडी ऑन व्हाट ब्लड कल्चर मीडिया। और ये दो तरीके के होते हैं, आपका मोनोफेजिक, दूसरा है बाईफेजिक मीडिया, ठीक है। देखो, now the monophasic media, it contains brain heart infusion BHI broth, okay, as you can see in the image. Next is your biphasic media, that is your liquid phase media, okay. इसे हम diphasic media भी बोलते हैं, ठीक है। It is also made up of your BHI broth, fine. Thank you so much for watching. If you have enjoyed this session, then do hit the like button. If you have any questions or queries, then don't forget to leave your comments below. Please subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss my videos. Until next time, stay curious and keep learning.